اور شہر کی منظم ترقی کے لیے 20 سالہ ماسٹر پلان بنانے کا کام بھی مکمل نہ ہو سکا۔ رپورٹ کریں گے محمد رمضان مرزا۔ پنجاب کے دوسرے بڑے شہر فیصل آباد کا پہلا ماسٹر پلان 1964، دوسرا 1986، تیسرا 1996 اور چوتھا پلان 2006 میں بنایا گیا، مگر ماسٹر پلاننگ پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ پھر 2016 میں FDA نے 2016 سے 2036 تک کا ماسٹر پلان پر کام شروع کیا، جس میں صنعت اور رہائش کے لیے جگہوں کا تعین کرنا تھا۔ گندگی سے پھیلنا شہر کی آفاقی پھیلاؤ کو روکنے اور عمودن ترقی دینے کی غرض سے آئندہ 20 سال میں شہر کے خد و خال کا فیصلہ ہونا تھا۔ پلوں کی ضرورت کہاں ہے، انڈر پاس کس چونک میں بنیں گے، پارکوں، ہسپتالوں، کھیل کے میدانوں، شاپنگ مالز کی کمی کس علاقے میں ہے، کمرشل سینٹرز کہاں بنائے جائیں گے، ان تمام کا فیصلہ ہونا تھا۔ عثمانی اینڈ کمپنی کو FDA کی جانب سے فنڈز نہ ملنے سے منصوبہ ٹھپ کا شکار ہے۔ DG FDA کا کہنا ہے کہ جلد تکمیل ہو جائے گی۔ یہ 64 والا، 96 والا، 2004 والا یہ وہ ڈاکومنٹ ہے جو کسی فورم سے اپروو نہیں ہوئے۔ اس میں صرف پلانز رکھے گئے تھے، جس میں ایک شہر کی پلاننگ کی گئی تھی ڈفرینٹ انڈیویجولز کے حوالے سے، جس طرح 96 والا تسنیم نورانی صاحب نے اس میں ایفرٹ کی تھی۔ ابھی اس کی جو اپروول کی سٹیج ہے اس میں ہم کوشش کریں گے کہ جتنے اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو آن بورڈ کریں۔ اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشن ہماری جاری ہے۔ ہمارا پلان ہے کہ 23 مارچ کو ہم شہر کو اور قوم کو ایک تحفہ پیش کریں کہ ماسٹر پلان کی شکل میں ماسٹر پلان ہم فائنلائز کر کے اس کو امپلیمنٹ کر دیں 23 مارچ 2021 تک۔ اسمارٹ سٹی بنانے کے لیے تیزی سے پھیلتے اس شہر کے لیے جنگی بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد۔ انتظامیہ کی جانب سے تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری، گھر گرائے جانے پر یہاں پر عوام سے راپا احتجاج۔ شاہدہ گمن کی رپورٹ دیکھیے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے مین بازار گتا مارکیٹ سنت پورہ میں گھر گرانے کا نوٹس دیا گیا، جس پر اہل علاقہ شدید مشتعل ہو گئے اور ضلع انتظامیہ کے خلاف احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیا۔ شہریوں کا کہنا ہے 70 سال سے یہاں مقیم ہے، لیکن ضلع انتظامیہ نے گھر گرانے کا نوٹس دیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا یہ کون سی ریاست مدینہ ہے جہاں لوگوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے، اب گھر بنائیں گے یا بچوں کو کھلائیں گے۔ ریاست مدینہ ایسا نہیں کرتی، ریاست مدینہ میں تو لوگوں کو متبادل گھر دیے گئے تھے، آپ تو لوگوں کے گھر چھین رہے ہیں اور بغیر نوٹس کے۔ اور کمشنر صاحب آپ ضلع کے مالک ہیں، ACCT صاحب نے اس کو ذاتیہ نا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ ਅਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮਕਾਨ ਲਵਾਂਗੇ? ਸਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਛੱਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ? احتجاج میں شریک خواتین کا کہنا تھا کل سے سڑکوں پر بیٹھے ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچے اور جوان بچیاں لے کر کہاں جائیں؟ 20,000 روپیہ کرایہ ہم کہاں سے دیں گے؟ مہینے کا کرایہ ایک آنکھیں بند کرے مہینے کا کرایہ آ جاتا ہے، ہم کہاں سے دیں گے؟ نہ بجلی کا بل نہ گیس کا بل، ہم کہاں سے پورے کریں گے اپنے اخراجات؟ چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے ہیں، ہم کدھر جائیں گے؟ ہمیں انصاف ملنا چاہیے۔ اللہ تو سوا ساڈا کوئی سہارا نہیں، وہ سونے محبوب دے صدقے نا انہیں تو سونے نے رحمتاں ونڈیاں سی، سونے دا مہینہ وا، وہ تو اپنی رحمتاں ونڈدا، یہ سارے سراں تے چھت وچ کھوئی جان دے، اسی بچے لے کے کتھے جائیے؟ سڑکاں تے جائیے کتھے؟ کل دیاں بچیاں جوان لے کے سڑکاں تے بیٹھے۔ اہل علاقہ نے مطالبہ کیا ہے کہ ان سے گھروں کی چھتیں نہ چھینی جائیں۔ کیمرامین شاہزیب کے ساتھ شاہدہ گمن، فیصل آباد۔ ویسٹرن پنجاب کالج آف لاء فیصل آباد میں صوفی نائٹ کا اہتمام، مقامی فنکار حسن سلامت نے اپنی آواز کا جادو جگایا۔ ڈائریکٹر ڈاکٹر مجیب اللہ، پرنسپل اکرم ربانی، فیکلٹی اور طلبہ کی شرکت۔ طلبہ نے صوفی نائٹ میں خوب انجوائے کیا۔ جہانگیر صرف رپورٹ کریں گے۔ سوسائٹی فار ہیومن ڈیولپمنٹ ٹوبہ کے زیر اہتمام ماحول کی خوبصورتی کو بچاؤ کے موضوع پر تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ طلبہ نے ٹیبلوز پیش کیے، بڑوں نے انفرادی سطح پر ماحول صاف رکھنے کے کردار پر زور دیا۔ وقار گھمن کی رپورٹ۔ پیراڈائز ہوٹل میں سوسائٹی فار ہیومن ڈیولپمنٹ ٹوبہ کے زیر اہتمام ماحول کی خوبصورتی کو بچاؤ کے موضوع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر محکمہ ماحولیات محمد نواز سیال، انسپیکٹر عرفان خان، فادر سیمسن، ایوب انجم اور شمائلہ جوید سمیت خواتین و حضرات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ بچوں نے خوبصورت ٹیبلوز سے ماحولیات کے تحفظ کو اجاگر کیا۔ شرکا کا کہنا تھا کہ ماحولیاتی تبدیلی کو روکنے کے لیے ہمیں اپنی سطح پر بھی کردار ادا کرنا ہوگا۔ یہ ماحول کا کام ایک گھر سے شروع ہوتا ہے، اور بلکہ میں تو کہتا ہوں کچن سے شروع ہوتا ہے۔ اگر بیوی جی اگر کوئی کام کرتی ہے کچن میں تو اس میں بھی جتنا بھی ویسٹ کلیکٹ ہوتا ہے اس کو پراپرلی اگر وہ ڈسپوز کرتی ہے، وہی ویسٹ جو پورے گھر کا وہ پراپرلی ڈسپوز ہوتا ہے، تو اس طرح ماحول میں بہتری بھی آئے گی اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے مسائل بھی حل۔ دنیا بھر میں
माहौल को साफ रखने के लिए आवाज़ें बुलंद की गई हैं। और आज हमने इस सेमिनार पर इसी बात पर जोर दिया गया है कि सब कौम, सारी उम्मत के लोग, सारे मक्तब फिक्र के लोग इकट्ठे हों और इस माहौल को साफ करने की कोशिश करें। आज की जनरेशन दरख्तों को ख़त्म करके उनकी जगह पे बिल्डिंग्स खड़ी कर रही है। अगर हम दरख्त नहीं लगाएंगे तो एक दिन आएगा हम लोग इस दुनिया में रहने के काबिल नहीं रहेंगे। लिहाजा हमारी पूरे पाकिस्तान से यही रिक्वेस्ट है कि दरख्त लगाएं ताकि हम इस कायनात को खूबसूरत बना सकें। शुरा का कहना था कि हमें अपनी नस्लों को साफ माहौल देने और माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए किरदार अदा करने की जरूरत है। कैमरामैन राशिद अनवार के साथ वकार गुमन, सिटी 41। पावरलूम एसोसिएशन कमालिया के ज़ेरे एहतमाम ऑल पाकिस्तान लूम कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। MN रियाज फतेहाना ने खुसूसी शिरकत की। चेयरमैन चौधरी वहीद खालिक करामी समेत पंजाब भर से नुमाइंदे भी शरीक हुए। रिजवान खान रिपोर्ट करेंगे। कमालिया में पावर लूम एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम ऑल पाकिस्तान लूम कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। MN रियाज फतेहाना बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। इस मौके पर चेयरमैन ऑल पाकिस्तान लूम ऑनर चौधरी वहीद खालिक रामी समेत पंजाब भर से नुमाइंदों ने भी शिरकत की। पावर लूम्स के मालिकान की जानिब से MN रियाज फतेहाना को अपने मसाइल के बारे आगाह किया गया। हमने MN रियाज फतेहाना साहब को पावर लूम इंडस्ट्री के तमाम मसाइल के मतलब उनको आगाह किया है, खास तौर पर बिजली के रेट्स की ज्यादती के मतलब जो पाकिस्तान में कॉटन की रोज बरोज प्रोडक्शन कम हो रही है और ये एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है। और हमारे जो सोशल सिक्योरिटी के और बाकी मामला हैं, ये सारे मामला हमने MN साहब की गोशगुजार किए हैं। MN रियाज फतेहाना की जानिब से तरजीही बुनियादों पर मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई गई। उनका कहना था वज़ीर आज़म से मीटिंग के दौरान कहा है कि पावर लूम्स इंडस्ट्री को खोला जाए क्योंकि बहुत से मजदूर लूम इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। मेरे ख्याल काफ़ी तक उनके मामला बेहतर हैं, उनके मुतालबात काफ़ी हद तक दुरुस्त हैं। इसके लिए मैंने उनसे वादा किया है कि मैं एनर्जी डिवीजन और FPR और जो गवर्नमेंट के दीगर डिपार्टमेंट्स हैं उनसे मुज़ाकरात में आपका मैं साथ दूंगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि बिजनेस एक्टिविटी हो और लोगों को रोजगार मिले। तकरीब के इख्तिताम पर पावर लूम्स के मालिकान की जानिब से MN रियाज फतेहाना को इंडस्ट्री बेहतर बनाने के लिए इक़दामात पर सराहा गया और एजाज़ी शील्ड भी पेश की गई। कैमरामैन जवाद मलिक के साथ रिजवान खान, सिटी 41 कमालिया। लाहौर की खवातीन क्रिकेट टीम फैसलाबाद पहुंच गई। आज फैसलाबाद कुड़ियों से टाकरा होगा। खवातीन के मैच में होगी चौकों और छक्कों की बरसात। लाहौरी कुड़ियां फैसलाबाद में अपने भरपूर तरीके से इस्तकबाल के लिए खुशी से निहाल हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि खेल के हवाले से फैसलाबाद से जो मोहब्बत मिली यादगार है। दोस्ती के रिश्ते, खेलों के नाते पे आज यकीन आया। फैसलाबाद खुश मिजाज और प्यार करने वालों का शहर है। आज के मैच में जो भी जीता फतह क्रिकेट की होगी और ऐसे मैचेस होते रहने चाहिए ताकि खेलों को मजीद फरोग मिले। आपको बताएं कि लाहौर की खवातीन क्रिकेट टीम फैसलाबाद पहुंच गई। आज फैसलाबादी से टाकरा होगा। खवातीन के मैच में होगी चौकों और छक्कों की बरसात। गन्ने की काश्त के हवाले से अब गन्ने की क्रशिंग के दौरान मुश्किलात से बचने के लिए जंग इंतजामी ने अहम हिदायत जारी कर दी। डिप्टी कमिश्नर ताहिर वटू और DPO सरफराज विर्क की जानिब से मिल्स मालिकान को आगाह कर दिया गया। मुबशर हसन नकवी की रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर ताहिर वटू और DPO जंग सरफराज खान विर्क ने कमेटी रूम में मिल्स मालिकान और इंतजामिया के साथ मीटिंग की। इस मौके पर हिदायत जारी की गई कि शुगर मिल्स अपने ही इलाकों से गन्ना खरीदने की पाबंद होगी। गैर मुतल्लिका इलाकों से आने वाले गन्ने की ट्रॉलियों को बंद कर दिया जाएगा। DPO सरफराज विर्क का कहना था कि गन्ने से लदी ट्रॉलियां ट्रैफिक बहाव में रुकावट बनती हैं। मिल मालिकान ट्रैक्टर ट्रॉलियों के मालिकान को रिफ्लेक्टर लगाने का पाबंद बनाएं ताकि हादसा पेश न आए। डिप्टी कमिश्नर ताहिर वटू ने मिल मालिकान को हिदायत की कि क्रॉसिंग सीजन में काश्तकारों को गन्ने की अदायगी 3 रोज के अंदर की जाएगी। जो बड़ा मसला है वो ट्रैफिक का है, जिसमें आम शहरी जो है वो मुतासिर होते हैं। दूसरा बड़ा इशू जो है किसानों की पेमेंट का होता है। तो इन 2 मसाइल पे आज DPO साहब और मैंने ये मीटिंग बुलाई थी, जिसमें जो है तमाम किसान इत्तेहाद के लोग और शुगर मिल के लोग, हमारी पुलिस के लोग, हमारे रेवेन्यू के लोग और तमाम अफसरान ने शिरकत की। इसमें आज जो है कि कुछ चीज़ें तय की हैं हमने। उसमें हेड त्रीमू जो अक्सर बंद होता है, तो इस दफ़ा हमने ये पॉलिसी बनाई है कि जो शुगर मिल भी है जिसका जो एरिया है उससे गन्ना लेगी, तो इधर की शुगर मिल जो है कि क्रॉस दी त्रीमू नहीं लेगी, ताकि ये जो एक बर्डन बन जाता है हेड त्रीमू पे वो ना हो और दोनों साइडों का गन्ना अपनी अपनी तरफ रहे। मीटिंग में बताया गया कि किसानों और इंतजामिया का एक नुमाइंदा मिल्स में मौजूद रहेगा जो मसाइल से वक्तन फवक्तन इंतजामिया को आगाह करेगा।
जंग में खुले गटर हादसात का बायस बनने लगे। सब्जी मंडी रोड, आदेवाल चौक, लारी अड्डा पर गटरों के ढक्कन गायब हो गए। शहरी मुश्किलात से दो चार हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बल्दियाती निजाम खत्म होते ही जंग में मसाइल पैदा हो गए। जगह जगह गंदगी के ढेर, सीवरेज का पानी और ढक्कनों के बगैर गटर वबाले जान बन चुके हैं। यह शहर का मेन चौक है। अब अंधेरा है, लाइट वगैरह यहाँ पर कोई नहीं लगी हुई, तो बच्चे भी गिरते हैं। इसमें अक्सर वाकयात हो चुके हैं, बुजुर्ग गिरते हैं। तो ये इस रोड पे जितने भी गटर हैं, इनके यही हालात है। और अभी तक ये कितनी दफ़ा कहा भी है, मगर कोई काम जो है। सरगोदा रोड, आदिवाल चौक, लारी अड्डा, पुराना चिन्योट रोड, बस्ती रसूलपुरा, कॉलेज रोड, जंग सिटी रोड पर खुले गटर हादसात में इजाफे का सबब बनने लगे हैं। चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन खालिक दाद के मुताबिक जल्द ही गटरों के ढक्कन लगा दिए जाएंगे। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41 जंग। टोबा टेक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की ज़ेर सदारत डेंगू के हवाले से इजलास जिला भर में किए गए इंतजाम का जायजा लिया, जबकि महकमा एजुकेशन की जानिब से इंतजाम न होने पर बरहमी का इजहार किया गया। शाहिद महमूद रिपोर्ट करेंगे। टेक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद के ज़ेर सदारत डेंगू के हवाले से इजलास, तमाम डिपार्टमेंट के सरबराहान ने शिरकत की। डेंगू के हवाले से इंतजामात पर ब्रीफिंग में बताया गया कि तमाम अस्पतालों में टेस्ट किए जाते हैं, ताहम जिला भर में ताहाल कहीं पर भी डेंगू का मरीज सामने नहीं आया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने डेंगू के हवाले से स्कूलों में इंतजामात न होने पर बरहमी का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर ने CEO एजुकेशन को खुद रोजाना स्कूलों के दौरे करने और तस्वीर शेयर करने का हुक्म दिया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि सब ने मिलकर डेंगू का खात्मा करना है, इसलिए तमाम अफसरान रोजाना की बुनियाद पर अपने दफातर को साफ सुथरा रखें। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। टोबा टेक्सिंग में कैनाल रोड पर फैस्को की जानिब से दरख्तों को काटने का सिलसिला शुरू। सिटी 41 की निशानदही पर AC रिजवानुल हक ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का इंदिया दे दिया। रिपोर्ट देखिए। टेक्सिंग में वजीर आजम की ग्रीन मुहिम नाकामी से दो चार। किनार रोड पर फेस्को की जाम से दरख्तों को काटने का सिलसिला जारी है। बिजली की तारों का जवाज बनाकर दरख्तों को ही काटना शुरू कर दिया, जिससे न सिर्फ खूबसूरती में कमी हो रही है बल्कि माहौल भी खराब होने लगा है। शहरियों का कहना था कि अवाम किसी दरख्त को काट दे तो फौरी मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। पूरे किनार रोड की खूबसूरती दी ऐसी तैसी दे दी है, एक कटाई हो रही है। ये तो इस तरह कर रहे हैं जिदा जाड़ा पा रहे हैं भी किनार रोड से हर शा खत्म कर दो, सब्जा खत्म कर दो। उधर वजीर आजम कह रहे वा दरख्त लाओ, इन्ने करोड़ लाते हैं, इधर ये दरख्त पुट्टी जान डे आ। देखो जी आ की हाल बना दिता इन्होंने बापटा वालियां ने। ਅਸੀਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਵੱਡੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆ ਇਸ ਰੋਡ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਏ ਨੇ, इन्हों ने आन के दोबारा उन्होंने रोकने की कोशिश की है। फेस्को मुलाजमीन की जाम से न सिर्फ कुल्हाड़ियों से दरख्तों को काटा जा रहा है बल्कि कटर मशीनों के जरिए भी दरख्तों के तने काटने का सिलसिला जारी है। सिटी 41 की निशानदाही पर असिस्टेंट कमिश्नर रिजवानुल हक फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे। फेस्को मुलाजमीन की सरजश की और काम बंद करवा दिया। जब मुझे इतला मिली है मौके के ऊपर, मैंने ना काम को रोक दिया और मैंने इनको स्ट्रिक्टली वार्न किया है कि अगर आपने ये दोबारा इस दरख्त को काटने की कोशिश की तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएट किया जाएगा। दूसरी चीज़, जहाँ तक इनको अगर तारों के साथ अगर कोई दरख्त साथ अड़ रहे हैं या उसकी रुकावट पैदा हो रही है, उसको भी काटने का एक सलीका है, उसको काटने का एक तरीका है कि अगर आप उसके बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर से अगर आप जो छंगाई वगैरह कर लें, उसको काटने का तो कोई असूल पैदा नहीं होता। शहरियों की जाम से आला हुकाम से दरख्तों को खराब करने वालों के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। स्कूल शुमारी होने में सिर्फ एक हफ्ता बाकी। स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम के मुताबिक रवां साल अब तक सरकारी स्कूलों में 73,000 से ज्यादा तलबा कम दाखिल हुए। स्कूल सरबराहान के लिए 30 अक्टूबर तक मजीद बच्चों को स्कूल दाखिल करने की हिदायत की गई। ये रिपोर्ट देखिए। महकमा तालीम हर साल अक्टूबर में स्कूल शुमारी कराता है। स्कूल शुमारी होने में सिर्फ एक हफ्ता बाकी रह गया, लेकिन सरकारी स्कूलों में तुलबा का दाखिला गुज़िश्ता साल के बराबर ना पहुंच सका। अक्टूबर 2019 में फैसलाबाद के स्कूलों में 8,56,000 से ज़ायद तुलबा ज़ेर तालीम थे। अभी तक जिला भर के सरकारी स्कूलों में 7,82,410 तुलबा दाखिल किए जा सके हैं। इम्तिहान के लिए 30 अक्टूबर तक मजीद बच्चों को स्कूल दाखिल कराने की हिदायत की गई है। डीओ सेकेंडरी एजुकेशन इफ्तिखार खान कहते हैं स्कूलों में दाखिला बढ़ा लिया जाएगा। निजी स्कूल की फीसिस ना देने के बाइस तुलबा गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल हो रहे हैं। कोरोना पर अमल दरामद किया जा रहा है। वालिदैन बच्चों को स्कूल जरूर भेजें। सरबराहान और साजिदा को वालिदैन से राब्ता करके दाखिला बढ़ाने की हिदायत भी की गई है।
ہمارا ایڈمیشن بڑھے گا وہ یہ ہے کہ آپ کے نالج میں ہے کہ پرائیویٹ جو سکولز ہیں وہ تقریباً 5-6 مہینے بند رہے ہیں. اس کی بیسس پہ پرائیویٹ سکولز جو ہیں وہ اکٹھی فیسیں جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. پیرنٹس اس قابل نہیں ہے کہ وہ فیسیں دے سکیں. لہٰذا ہمارے اسکولوں کے اوپر اسکولوں کے جو سربراہان ہیں ان کے اوپر پریشر ہے کہ جو پرائیویٹ اسکول سے بچے چھوڑ کے آ رہے ہیں ان کو ایڈمٹ کیا جائے. اسکول انفارمیشن سسٹم کے مطابق اسکولوں میں گزشتہ سال سے 73,000 طلبہ کم داخل ہوئے. سربراہان کو داخلہ گزشتہ سال کے برابر کرنے کے لیے مزید 73,000 سے زائد طلبہ داخل کرنے کی ضرورت ہے. کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ جہانگیر. فیصل آباد میں 26 اکتوبر سے انسداد پولیو مہم کا آغاز ہوگا. ضلع کونسل ہال میں سیمینار اور آگاہی ریلی نکالی گئی. بعد ازاں ہلال احمر ہسپتال میں 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر مہم کا افتتاح کیا گیا. کمشنر، ڈپٹی کمشنر ایم پی اے اور محکمہ صحت افسران شریک ہوئے. عزادار حسین کی رپورٹ دیکھیے. فیصل آباد میں انسداد پولیو مہم سے متعلق سیمینار اور آگاہی ریلی نکالی گئی. بعض ہلال احمر میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر مہم کا افتتاح کیا گیا. اس موقع پر کمشنر عشرت علی، ڈپٹی کمشنر محمد علی، اے ڈی سی عفیفہ شادیہ، ایم پی اے فردوس رائے، سی او ہیلتھ ڈاکٹر مشتاق سپرا اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر بلال احمد سمیت دیگر ملازمین شریک ہوئے. کمشنر عشرت علی کا کہنا تھا 26 اکتوبر سے انسداد پولیو مہم منائی جا رہی ہے. اس دوران 13,30,000 بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے. پیغام یہی ہے کہ ہم سب لوگوں نے ذمہ داری سے اس کمپین کو کامیاب کرنا ہے اور یہ حکومت کے علاوہ ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ارد گرد جتنے بچے ہیں جو 5 سال سے چھوٹے ہیں ہم اس چیز کو یقینی بنائیں کہ ان 5 دنوں میں ان بچوں کو پولیو سے تحفظ کے قطرے ضرور پلائیں. ڈپٹی کمشنر محمد علی کا کہنا تھا کہ 3500 ٹیمیں فیلڈ میں کام کریں گی جبکہ انسداد پولیو مہم کی مانیٹرنگ بھی کی جائے گی. اس دفعہ ہمارا 13,30,000 کا ٹارگٹ ہے اور تقریباً 3500 سے زائد ہماری ٹیمز جو ہیں وہ فیلڈ میں ہوں گی اور ہماری پوری کوشش ہے کہ اس 5 دن کی کیمپین میں ہم 100% سے زیادہ جو ہے وہ کوریج کریں. اس میں میری تمام شہریوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ وہ 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو اپنے بچوں کو قطرے پلائیں. انتظامیہ کے مطابق 12 ربیع الاول کے روز انسداد پولیو مہم نہیں منائی جائے گی. کیمرامین محمد قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد. شنوٹ میں 26 اکتوبر سے انسداد پولیو مہم جاری ہے اور یہاں پر ڈی سی محمد ریاض نے سی ای او ہیلتھ کے ہمراہ ڈی ایچ کیو اسپتال میں 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر مہم کا افتتاح کیا. بابر منیر رپورٹ کریں گے. چنیوٹ میں 26 اکتوبر سے 5 روزہ انسداد پولیو مہم منائی جا رہی ہے. اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر محمد ریاض نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں 5 سال کی عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا. اس موقع پر سی او ہیلتھ ڈاکٹر مشتاق بشیر عاقف اور ایم ایس ڈاکٹر محمد اعظم سمیت دیگر بھی ہمراہ تھے. ڈی سی کا کہنا تھا کہ 2,39,000 بچوں کو 700 سے زائد پولیو ٹیمیں قطرے پلائیں گی. ہماری ٹیمیں جو ہیں پہلے 603 سی اب 768 ٹیمیں ہو گئی ہیں. اضافہ انہوں نے WHO نے ہمارا کر دیا ہے کیونکہ ہمارا ٹارگٹ بڑا تھا اور ٹیمیں اوور برڈن تھیں اور ٹارگٹ ہمارا وہی 2,39,000 بچے ہیں 5 سال سے کم عمر کے جو ہیں. ڈی سی محمد ریاض کا کہنا تھا کہ مہم کے دوران کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. والدین بھی پولیو ٹیموں کے ساتھ تعاون کریں. تو میری تمام پیرنٹس سے گزارش یہ ہے کہ وہ اپنے جتنے بھی 5 سالوں سے کم عمر کے بچے ہیں ان کو پولیو کے 2 قطرے لازمی پلائیں اور عمر بھر کی معذوری سے بچائیں. ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ ضلع بھر میں ابھی تک کوئی پولیو کا کیس رپورٹ نہیں ہوا. کیمرامین علی زیب چوہان کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ. لیڈی ہیلتھ ورکرز یونین فیصل آباد کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس لیڈی ہیلتھ ورکرز کے مسائل بارے آگاہ کیا گیا. لیبر فیڈریشن کانفرنس ہال میں ہونے والے اجلاس میں یونین گلوبل انٹرنیشنل کے نمائندوں نے شرکت کی. لیڈی ہیلتھ ورکرز کی کورونا میں خدمات کو بین الاقوامی سطح پر سراہا گیا. اس موقع پر ورکرز کے تمام مسائل بارے بتایا گیا. لیبر فیڈریشن آف پاکستان کے جنرل سیکریٹری میاں محبوب کا کہنا تھا کہ تحفظ اور باعزت ڈیوٹی کا احساس ہر ورکر کا حق ہے. پے اسکیل سمیت تمام مسائل کو اجاگر کیا جائے گا. فیصل آباد کے گورنمنٹ کمپریہنسو ہائر سیکنڈری اسکول سمن آباد میں ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے نعتیہ مشاعرے کا انعقاد. معروف شاعر ڈاکٹر ریاض مجید سمیت شعراء کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعتیہ کلام پیش کر کے وہاں پر خوب گلہائے عقیدت پیش کیے. جہانگیر اشرف کی رپورٹ دیکھیے. گورنمنٹ کمپریہنسو ہائر سیکنڈری اسکول سمن آباد میں ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے نعتیہ مشاعرہ سجایا گیا جس کی صدارت معروف شاعر ڈاکٹر ریاض مجید نے کی اور اپنا کلام پیش کیا. اپنی اپنی تشنہ روحوں کے تہی کاسے لیے اے جہاں برس رواں سائل مدینے کی طرف. بہت اچھے. اولی آماج گاہو آخری امیدگاہ. بے شک بے شک. اولی آماج گاہو آخری امیدگاہ.
देखते हैं सब दमे मुश्किल मदीने की तरफ। नातिया मुशायरे में अफजल खाकसार, रियाज कादरी, प्रोफेसर मसूदुर रहमान, मकसूद अहमद आजिज, डॉक्टर असगर बलोच, जाफिर कमर सियालवी, प्रोफेसर तनवीर हमीद, अनवर अनीक समेत दीगर शोराए कराम ने भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नातिया कलाम पेश किया। चमका जो पूरी आबो ताब से वो दरख्शां सितारा आप हैं, हो के महबूब खुदा दुनिया से पत्थर खाए, हो के महबूब खुदा दुनिया से पत्थर खाए, कौन समझेगा भला इश्क का उकदा कोई। जब लोहे दिल पे नात उतारी हुजूर की, और आदम को और ईसा यूसुफ को भेजकर, आदम को और ईसा यूसुफ को भेजकर खालिक तो कर रहा था तैयारी हुजूर की। इस मौका पर सीईओ एजुकेशन अली अहमद सयान, डीओ सेकेंडरी एजुकेशन इफ्तिखार खान, प्रिंसिपल हाफिज अब्दुल नासिर, अनवारुल हक और दीगर असातिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद मौजूद थी। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ जहांगीर अशरफ। ट्रैफिक वार्डन्स के मसाइल सुनने के लिए चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने हफ्तावार एक दिन मुख्तस कर दिया। वार्डन्स के लिए पहली बार वेलफेयर पॉलिसी वसा कर दी गई। सीटीओ हसन अफजल का कहना था कि वार्डन्स सिफारिश के बजाय यहां पर बराह रास्त मसाइल लेकर आएं, फौरी तौर पर मेरिट पर हल किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस में पहली बार वार्डन्स के मसाइल सुनने के लिए हफ्तावार 2 दिन मुख्तस कर दिए गए। वार्डन्स की वेलफेयर के मसाइल के लिए भी एक दिन अलग से मुख्तस किया गया है, जबकि वार्डन्स के तबादला जात और छुट्टियों की दरख्वास्तों के लिए एक दिन मुख्तस किया गया। सीटीओ हसन अफजल के मुताबिक बच्चों की तालीम और सेहत के मसाइल हल करवाने के लिए अलग दिन रखा गया है। टोबा टेक्सिंग में इंतजामिया की जानिब से अंडरपास खूबसूरत बनाने का काम शुरू। रंगो रोगन करने पर शहरियों ने खुशी का इजहार किया, जबकि मुस्तकबिल में अंडरपास की देखभाल करने की अपील भी कर दी। टोबा टेक्सिंग में इंतजामिया की जानिब से अंडरपास को खूबसूरत बनाने का काम शुरू कर दिया गया। अंडरपास पर रंगो रोगन किया जा रहा है और शहरियों ने खुशी का इजहार करते हुए मुस्तकबिल में अंडरपास की देखभाल करने की भी अपील कर दी है। फैसलाबाद प्रेस क्लब में तहरीक मिनहाजुल कुरान के 40वें यौम तासीस पर तकरीब का इनेकाद किया गया। मकामी कायदीन समेत कारकुनान ने शिरकत की। राना साहिद नसीर की रिपोर्ट देखिए। तहरीक मिनहाजुल कुरान के 40वें यौम तासीस के मौका पर फैसलाबाद प्रेस क्लब में तकरीब का एहतमाम किया गया। मिनहाजुल कुरान वेलफेयर फाउंडेशन के सदर हाजी मोहम्मद अमीन की जेर सरपरस्ती प्रेस क्लब में किया गया। तकरीब में मोटिवेशनल लेक्चरर सुल्तान खान ने खुसूसी शिरकत की, जबकि तकरीब में ज़िली सदर मियां अब्दुल कादिर, ज़िली नाज़िम हाफिज रब नवाज, अवामी तहरीक के सदर राना ताहिर सलीम, जनरल सेक्रेटरी अवामी तहरीक मियां काशिफ महमूद, ज़िली सदर यूथ लीग राय साजिद हुसैन, ब्यूरो चीफ सिटी 41 जफर डोगर, मीडिया सेक्रेटरी यूथ लीग मंजूर हुसैन रहमानी, मिनहाजुल कुरान PP 110 के सदर मलक सरफराज कादरी, मिनहाजुल कुरान की मुकामी क़यादत समेत कारकुनान ने शिरकत की। स्टेट सेक्रेटरी के फराइज मियां काशिफ महमूद ने सर अंजाम दिए, जबकि मियां काशिफ महमूद ने भी 40वें यौम तासीस के हवाले से अशार पढ़े। सदर सेंट्रल पंजाब मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन हाजी मोहम्मद अमीन अल कादरी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मैं आप सबको 40वें यौम तासीस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरी जिंदगी के 36 साल मिनहाजुल कुरान का हिस्सा है। 1984 में मिनहाजुल कुरान में शमूलियत इख्तियार की। हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जिन्होंने मुझे एक अच्छे काम के लिए रास्ता दिखाया। मुझे खुशी है कि मेरे घर का हर फर्द मिनहाजुल कुरान का हिस्सा है। बड़ी सरगर्मी से जो है ना वो 2 थिएटर जो है ना स्टूडेंट्स के लिए जो लड़के जो है ना PhD के बाद स्पेशलाइज करने चाहते हैं या MPhil के बाद स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, उनके सारे इंतजाम तेजी से हो रहे हैं। मोटिवेशन लेक्चरार सुल्तान खान ने खिताब करते हुए कहा कि मैं मिनहाजुल कुरान की तकारीब में खुद मोटिवेट होता हूँ। मिनहाजुल कुरान से सीखने के लिए आता हूँ। डॉक्टर ताहिरुल कादरी की तकारीर से बहुत कुछ सीखा है। जब तक कुरान पाक से तल्लुक नहीं जुड़ा तब तक काम करने में मजा नहीं आ रहा था। जैसे जैसे कुरान पाक से वाबस्तगी बढ़ती गई, काम में मजा आने लगा। हर जगह जब कुरान मजीद का मिनहाज और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा दिल कुर्बान, हमारी जान कुर्बान, उनका अखलाक व किरदार जब ले आएंगे तो रब ताला फरमाते हैं मैं इनाम वालों में मफहूम है, इनाम वालों में भी दाखिल करूंगा।
ब्यूरो चीफ सिटी 41 जफर डोगर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत को मनवाने के लिए अपना किरदार पेश किया। आप सब अच्छी बात कहें, उस पर अमल करें, अपनी जात बदलें। जो शख्स जहां है वहीं अपना मुस्बत किरदार अदा करे। पाकिस्तान से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। शहर में आकर पढ़ने वाले बच्चे भूल जाते हैं कि उनके वालिदैन उनके लिए क्या क्या कुर्बानियां दे रहे हैं। तमीर वतन में हर शख्स को अपना अपना हिस्सा डालना होगा। इनकलाब कहीं से आना नहीं होता, इनकलाब बर्पा किया जाता है, इनकलाब गलियों मोहल्लों में पलता है, इनकलाब आपने लाना होता है और उसका नुक्ता आगाज जो होता है वो आपकी जात होती है। तकरीब के इख्तिताम पर कायदीन की जानिब से केक काटा गया और दुआ मांगी गई। कैमरा टीम मोहम्मद वकास और नईम सलीम के साथ राना जाहिद।